All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay. Let's start the lecture. I will share the screen now. Today we will discuss, or the lecture is focused on the analog and digital communication lab for second year, fourth semester ECE. And today we will just review the experiment which are related to the analog and digital communication lab. So just see out the list of experiment which are present for the ADC lab. Okay. So first one experiment is the observe the amplitude modulated waveform and measure the modulation index and also demodulation of the AM signal. Second one experiment is related to the also for the amplitude modulation, which provide the harmonic analysis of amplitude modulated waveform. Third one is also related to the AM signal, which provide the information regarding the generation and demodulation of DSB-SC signal. DSB-SC, that means double sideband suppressed carrier signal. Fourth one experiment is the modulate a sinusoidal signal with high frequency carrier to obtain FM signal and demodulation of the FM signal. Next one is the verification of the sampling theorem. Sixth one experiment is that to study and observe the operation of super heterodyne receiver. Super heterodyne receiver is using for the analog communication system. Okay. Next, seventh experiment is the PAM, PWM and PPM modulation and demodulation. These are known as the pulse modulation techniques. Pulse modulation techniques are related in three forms: PAM, PWM and PPM. PAM is the pulse amplitude modulation. PWM is the pulse width modulation. PPM is the pulse position modulation. Okay, next is the eighth experiment to observe the transmission of four signal over a single channel using TDM PAM method. TDM is the time division multiplexing. TDM is related to the full form of TDM is the time division multiplexing, and the PAM is the pulse amplitude modulation. Okay. Next, experiment 9 is related to the to study the PCM modulation and demodulation and study the effect of channel like attenuation noise in between modulator and demodulator through the experimental setup. PCM is the full form of PCM is the pulse code modulation. Okay. 10th experiment to study the 4-channel PCM multiplexing and demultiplexing in telephony system. To study the PCM next experiment, 10th experiment is to study the 4-channel PCM multiplexing and demultiplexing in telephony system. Experiment 11 is related to the to study the delta and adaptive delta modulation and demodulation, and also study the effect of channel like attenuation noise in between modulator and demodulator through the experimental setup. Next, 12th experiment to perform the experiment of generation and study the various data formatting scheme, just like a unipolar, bipolar, Manchester, AMI, etc. And the 13th experiment is to perform the experiment of generation
and detection of ASK, FSK, BPSK, DPBSK signal with variable length data pattern. ठीक है, तो अभी तक अपन ने स्टडी जो क्लासेस हुई हैं, क्लासेस के रेस्पेक्टिव यूनिट फर्स्ट दैट इज रिलेटेड टू द AM एंड FM. तो AM और FM के रेस्पेक्टिव कौन कौन से एक्सपेरिमेंट रहेंगे? एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट यूनिट वाले केस में नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट कवर होंगे. तो ऑलरेडी अपन AM और FM की स्टडी कर चुके हैं, तो इनको सबसे पहले अपन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट 1 is observe the amplitude modulated waveform and measure modulation index and demodulation of the AM signal. Apparatus are required: CRO probes, amplitude modulation trainer kit and connecting leads. तो बेसिकली जो किट्स अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी टू ऑब्जर्व द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, CRO प्रोब, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यहाँ पे वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करना है. CRO प्रोब्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्टिंग बिटवीन द ट्रेनर किट एंड द CRO. ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनर किट है दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रेनर किट एंड कनेक्टिंग लीड्स. Next section is the theory section of the AM modulation. So modulation is defined as the process of changing the characteristics. Characteristics कौन सी characteristics? Amplitude, it may be amplitude, frequency or phase of the carrier signal in according with respect to the message signal or the modulating signal. तो basic definition AM की क्या रहेगी? Amplitude of the carrier signal is changed as according to the मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल. अब इसी को यहाँ जस्टिफाई करा है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड इन अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया है EM of t equals to EM cos of omega mt, where omega is angular frequency, EM is the amplitude. कैरियर सिग्नल क्या है? ECT इक्वल टू EC cos of omega CT. Okay, so finally this is the circuit diagram. Input is message signal. Here is the input is message signal. Another input is the carrier signal. Here is the carrier signal and output will be the amplitude modulated waveform. Procedures में first one, connect the circuit diagram as shown in the figure 1 and carrier signal 1 volt peak to peak amplitude and frequency of 83 kilohertz is applied carrier for pin number 10 for the trainer kit. With respect to trainer kit, audio frequency signal is also applied and observe the double sideband suppressed carrier amplitude modulated signal. This is the amplitude modulated signal. Red line will represent the modulating signal. ये red वाली line क्या है? Modulating signal है. और ये ब्लू लाइन क्या है? ब्लू लाइन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. दिस इज AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. डिमॉड्यूलेशन में क्या होगा? जैसे इस वाले ग्राफ में अपन देखा है सिंपली, दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? कैरियर सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल, फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल. मॉड्यूलेशन के बाद क्या क्रिएट हुआ? ये वाला जो एक तो ऊपर वाला एनवलप है, ये वाला एनवलप है, और एक बीच में जो वेव फॉर्म है, मिडिल वाली जो वेव फॉर्म है. सो दिस वेव फॉर्म इज नोन एज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ये वाला पोर्शन क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल. एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. और मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फिर डिमॉड्यूलेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो ये मैसेज सिग्नल और डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. आफ्टर डिमॉड्यूलेशन वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन सिग्नल और मैसेज सिग्नल. सो नेक्स्ट इज द SSB मॉड्यूलेशन. सिंगल साइडबैंड मॉड्यूलेशन भी अपन कर सकते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर की हेल्प से. SSB डिमॉड्यूलेशन भी अपन कर सकते हैं. जस्ट उसका सिमिलर रेसिप्रोकल प्रोसेस रहेगा टू रिकवर द ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो अब इसके प्रोसीजर में देखें. द सर्किट, AM के सर्किट के द सर्किट कनेक्शन इज मेड एज शोन इन द सर्किट. द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द ट्रेनर and it is also connected to the DSO or the CRO
एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए भी एक ट्रेनर किट है. ट्रेनर किट में क्या रहेगा? द सर्किट कनेक्शन आर मेड एज शोन इन द सर्किट डायग्राम. द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रॉम एएम जनरेटर इज गिवन इनपुट टू द डीमॉड्यूलेटर. मतलब जो एएम सिग्नल है वो इनपुट किसका रहेगा? डीमॉड्यूलेटर का. द डीमॉड्यूलेटर आउटपुट इज ऑब्जर्व्ड ऑन डीएसओ और सीआरओ. द टेक द प्रिंट ऑफ द ग्राफ ऑफ एएम demodulated waveform. Result, we have to successfully observe the various type of AM and the precautions are this one. Check the connection before giving the power supply. Observe should be done very carefully. Okay. तो ये सारा क्या है? theoretical वर्ड है. फाइल वर्क जो अपन करेंगे, this is the theoretical analysis of the amplitude modulated waveform. Okay. अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अपन क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ड्यू टू कोरोना या कोविड पेंडेमिक्स में अपन कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, तो इसको परफॉर्म क्या करेंगे? वर्चुअल लैब पे. सो वर्चुअल लैब इज प्रोवाइडेड टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, वेरियस एक्सपेरिमेंट. तो इस वर्चुअल लैब से जरूर अपने को फेमिलियर हो जाना है. ये लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, लिंक आपको गिवन है इस स्क्रीन पे. यहाँ जाके अपन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये लिंक उसमें पुट ऑन करना है. लिंक पुट ऑन करने के बाद ये स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ अपन इस एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट. ओके. इंट्रोडक्शन आया. इन एएम मॉड्यूलेशन एएम सिग्नल इज इम्प्रेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल. द रिजल्टेंट सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल. ऑब्वियसली एज पर द डेफिनेशन ऑफ एएम, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. There are the various form of the AM signal. सबसे पहले है डबल साइडबैंड AM सिग्नल. दूसरा वाला पार्ट है, दूसरी फॉर्मेशन हो सकती है AM की, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर. ये दूसरी टाइप की AM है. तीसरे वाले में क्या है? सिंगल साइडबैंड सप्रेस कैरियर. और फोर्थ टाइप की भी अपन स्टडी कर सकते हैं, वेस्टिंजियस साइडबैंड AM. ठीक है. एक्सपेरिमेंट में अपने कौन कौन सी अवेलेबल हैं? एक तो सिंपल AM की स्टडी है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन. दूसरा हार्मोनिक एनालिसिस है. और तीसरा कौन सा है अपना? तीसरा कौन सा एक्सपेरिमेंट है? डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर. तीसरा वाला कौन सा है अपना? जैसे फर्स्ट तो सिंपल एएम का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन है. सेकंड में हार्मोनिक एनालिसिस है एएम सिग्नल का. और तीसरे वाले में क्या है? जनरेशन है डीमॉड्यूलेशन ऑफ डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल. सो दिस इज अ थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पर देखना है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये एएम सिग्नल है और ये एफएम सिग्नल. अभी अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं? एएम सिग्नल की. तो दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. थ्योरेटिकल सेक्शन भी इसमें प्रोवाइडेड रहेगा. अपन ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीजें अपने को अवेलेबल रहेगा, कंटेंट. बाकी मैं इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जो एक्सपेरिमेंट की डिटेल वाली जो सॉफ्ट कॉपी मैं ऑलरेडी आपको गूगल क्लासरूम पर प्रोवाइड करवा दूंगा. और बाकी अपन इस ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म से भी सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. ओके. सो इन दिस सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल साइडबैंड एएम सिग्नल. दिस इज द एक्सप्रेशन. स्पेक्ट्रम ऑफ डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर. ओके. सिंगल टोन मॉड्यूलेशन. सो दिस इज द बेसिक वेवफॉर्म ऑफ द एएम सिग्नल. Amplitude of the carrier signal is changed as according to the modulating signal. The amplitude modulated waveform. ओके. ओवर मॉड्यूलेशन वाला केस कब आएगा? ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें क्लास में बताया. ओवर मॉड्यूलेशन कब आएगा? व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1. जैसे रेंज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या रहेगी? 0 to 1. तो 0 और 1 की केस में अगर आप मॉड्यूलेशन करेंगे तो कौन सी वेवफॉर्म आएगी? इस तरह से वेवफॉर्म आएगी एएम सिग्नल की. पर जैसी एम की वैल्यू, एम क्या है यहाँ पे? मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा लें, रेंज से आगे लें, तो उस केस में क्या आएगा? ये ओवर मॉड्यूलेटेड. तो ओवर मॉड्यूलेटेड वाले केस में इस तरह की वेवफॉर्म आएगी. इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवर मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म. ओके. मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये एएम सिग्नल है. एएम सिग्नल में ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम. ये ऑलरेडी मैं तुम्हें क्लास में बता चुका हूँ. दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एएम सिग्नल माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एएम सिग्नल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एएम सिग्नल प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एएम सिग्नल. इस तरह से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है.
साइनोसोडल सिग्नल हो गया। पावर अपन कैसे क्या आइडेंटिफाई करते हैं, पीसी इक्वल्स टू एसी स्क्वायर बाई 2, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। टोटल पावर पीटी इक्वल्स टू पीसी प्लस 2 साइड बेंड, सो पीटी इक्वल्स टू पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 4। अपन इस तरह से अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। थ्योरेटिकल सेक्शन अपन यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एएम सिग्नल के केस में और विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब ये सिमुलेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स है, इसमें अपन देखना है ये एएम सिग्नल है, एएम सिग्नल अपन ने जनरेट करा, ये डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। यहाँ इसमें वैल्यू अपन पुट ऑन करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पुट ऑन कर दी और उसके रेस्पेक्टिव जैसे 0.5 अपन देख रहा है, इसमें वेरीफाई द कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, ऑब्जर्व द AM waveform in time domain and frequency domain। टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ गिवन है, दिस इज द कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल यहाँ दे दिया है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फर्स्ट वन सेक्शन किसका है, ये कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सेकंड बिलो वाला सेक्शन क्या है, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड। इधर वाला मॉड्यूलेटेड मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। यहाँ वैल्यू पुट ऑन करेंगे और ये सीधा ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन अपने को किस पे करना है, CRO और DSO पे। तो दिस इज द AM सिग्नल। एंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VM by VC करो। VM इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ये ऑलरेडी मैं तुम्हें क्लास में बता चुका हूँ। और दूसरा एक्सप्रेशन अपन और कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, M इक्वल्स टू A max माइनस A minimum डिवाइडेड बाय A max प्लस A minimum। और अपन यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्टिव टू मेजर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मेजर अपन किस कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। वेवफॉर्म अपन ने क्रिएट कर ली, वेवफॉर्म क्रिएट करने के बाद ये फॉर्मूला पुट ऑन करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कोई इश्यू या कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, अभी पूछ सकते हो, है ना, लैब के रेस्पेक्टिव। पर ये वर्चुअल लैब से जरूर अपने को बेटा फेमिलियर होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सिंपल है, इजी है और काफी बच्चे इसको यूज में ले रहे हैं। NIT, IIT और कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो ड्यू टू द कोविड जो फिजिकली लैब्स अपने को अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, तो इसलिए क्या है कि अपन इस प्लेटफॉर्म को इजीली काम में लेके यूज कर सकते हैं। सिंपल है, इजी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू आती है तो मुझसे डिस्कशन। ठीक, ओके, थैंक यू।